الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب الشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear youngsters. How are you all? Okay, Alhamdulillah. So, our today's topic is what is real success. ठीक है, तो दिस इज अ डिस्कसिव टॉपिक. ठीक है, इसमें पहले मैं आप लोगों के ओपिनियंस और आप लोगों के पॉइंट्स सुनना चाहूंगी, एंड देन आई एड माय ओन पॉइंट्स. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट लाइबा टू स्टार्ट. लाइबा, आप अपने व्यूज शेयर करें इंशाल्लाह. ओके, आई एम रिपीटिंग. बेसिकली आई एम सेइंग कि बेसिकली हमारा जो आज का ये सेशन है, दिस इज अ डिस्कसिव सेशन. ठीक है, we'll discuss our opinions, our points. So I would request Laiba to start with it. Okay, Laiba, start कीजिए बेटा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Yes. I'm looking forward to discuss and I'm excited. My opinion is being closer to Allah subhanahu wa ta'ala is real success. Yes. And More points. being a good person. Being a good person, coming closer to Allah. Okay. Any more points? Mm, Okay, good, great, mashallah. Next is Fatima. Yes, Fatima, आप बताइए the points. What success means to you? Real success, according to me, is accepting that we are born in the best of the religion, that is Islam, and being a good person, having the faith in Allah's divine plan. Please, may you repeat the starting of the lines because your voice wasn't clear. Please go ahead and after starting से बोले. What success means to you? I said that the real success, according to Islam, is achieved through sincere faith in Allah. Good. But according to Islam, it is real success. But what according to you is real success? यहाँ पर हम इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे. जो आपके थॉट्स हैं, आप अपने थॉट मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आपकी जिंदगी में कामयाबी का क्या लेवल है, क्या मार्क है. ठीक है, आई वांट दैट. क्या आपकी जिंदगी में यही लेवल है?
जी Fatima, speak up. It's your According discussion. to according to my perspective, real success in this life and hereafter is that we are obeying our creator, while chasing our dreams also, because it's important to live a good life in this dunya also. Okay, good, great, mashallah, barakallahu feek, jazakallahu khairan kaseera. Okay, next is Manal. Welcome Manal. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑन दिस टॉपिक व्हाट इज रियल सक्सेस, सो आई वुड लाइक यू टू स्पीक अप योर ओपिनियंस एंड व्यूज. Manal. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी हैं आप? प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड हाउस आवर प्रेप ऑफ क्लास 10th? या इट्स गोइंग वेल. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज कि आज हमारा सेशन है वो डिस्कसिव टाइप है, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक योर ओपिनियंस ऑन द टॉपिक व्हाट इज रियल सक्सेस. ठीक है, आपके हिसाब से क्या होती है रियल सक्सेस? आपको अपने व्यूज बताने हैं. ओके मनाल. हम्म. Manal, did you get the question or not? Please give me 2 minutes. Like Okay, I'm okay, okay. thinking. Take your time. Take your time. ठीक है. Till then, what to do? I think all are done today. Very less students have joined. Okay. So, okay, we can wait, inshallah. You all can have a water break. Go and drink water. I think success is like achieving our dreams, and like matlab, living our dream life that we might have uh, imagined in our childhood or something like that. Okay, so you means success is chasing your dreams, achieving your dreams. Okay, good, great, mashallah, barakallahu feek. Okay, Zaina, assalamu alaikum, welcome. Ahlan wa sahlan, marhaba. So, am I audible to you? Yes. ओके जाइना, सो बेसिकली आज हमारा जो सेशन है वो डिस्कसिव सेशन है, राइट? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अप योर व्यूज ऑन द टॉपिक व्हाट इज रियल सक्सेस. नो वरीज, इट्स ओके फॉर बीइंग लेट, नो वरीज, it's okay. Yeah, so basically I would request you to come up with your views on the topic what is real success. Would you like to unmute your mic and speak, or will you type on the chat box? Okay, I think you will type in. Assalamu alaikum. Okay. Walaikum assalam. Yeah, I'll be speaking. Yeah, yeah. Success is basically just not about not failing. It's about how we rise, learn, and evolve. Basically, success is when we embrace challenges as part of our journey and just look forward to fulfill it just Great. in our own terms. It's like whether that it is building business, creating art, or raising a family. We think to we choose our own path and live life on our own terms. Okay, good, great, mashallah, barakallahu feek. ठीक है. So, alhamdulillah, all of you shared your views on the topic what is real success. ठीक है. Success means
व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं सक्सेस हमारे लिए क्या होती है, अगर हम बेसिकली दुनिया और दीन के पर्सपेक्टिव को बड़ा ही ना डिफरेंट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि दुनिया के हिसाब से सक्सेस कुछ और है, दीन के हिसाब से सक्सेस कुछ और है। बट जो हमारा पर्पस है, पर्पस ऑफ लिविंग, वो क्या है? अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत कर सके। अगर हम इस इबादत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब है वर्शिप। आज हम वर्शिप समझते हैं कि सिर्फ वर्शिप ये होती है कि आप अल्लाह ताला के सामने जाकर नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोजा रखें, दैट इज वर्शिप। बट ये इबादत नहीं है, ये इबादत का पार्ट है। इबादत हर वो काम है जो आप सुबह से उठकर रात के सोने तक करते हैं, एंड उसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल हो, एंड आप जो है वो अच्छे काम करें और उसको ये सोच कर करें कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो वो सिर्फ इबादत में आता है। इवन अगर आप दुनिया का भी इल्म हासिल कर रहे हैं, दुनिया का इल्म इन द सेंस कि साइंसेस पढ़ना, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस, तो ये दुनिया का इल्म हम लोग समझते हैं बेसिकली। तो अगर ये इल्म भी हासिल करें, लेकिन ये सोच कर कि मैं अगर साइंस पढ़ूंगी तो मुझे उससे अल्लाह ताला की क्रिएशन के बारे में पता चलेगा, मैथ्स पढ़ूंगी तो मैथ्स से जो है मैं बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। इवन मेरे जो फ्रैक्शन होता है उसके लिए हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं, यानी कि जो विरासत के कानून होते हैं, उसके लिए हमें फ्रैक्शन चाहिए होता है कि 2/3 किसको मिलना है, 1/3 किसको मिलना है, तो उसके लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लैंग्वेजेस से हम दीन की दावत दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ये सोच के कि इससे हमें अल्लाह ताला के दीन को प्रमोट करना है, अल्लाह के दीन को समझना है, अपनी नॉलेज में इजाफा करना, तो इट्स लाइक अ वर्शिप। लेकिन उसके साथ साथ दीन का इल्म हासिल करना भी जरूरी है। सक्सेस सिर्फ ये नहीं होती कि अगर कुछ लोग समझे कि हमें सिर्फ दीन में आगे बढ़ना है, तो दीन में आगे बढ़ने का मतलब तो फिर ये हो गया कि आप जो है दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर रहे। हालांकि आपको अपनी लिविंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, मनी चाहिए होती है आपको अपनी लिविंग के लिए, आपको अपनी लिविंग के लिए रिलेशंस चाहिए होते हैं। अगर आप रहबानियत यानी कि मोनास्टिसिज्म को फॉलो करेंगे तो वो तो ईसाइयों का तरीका है। इस्लाम रहबानियत यानी कि मोनास्टिसिज्म को प्रमोट नहीं करता। इस्लाम किस चीज को प्रमोट करता है? इस्लाम प्रमोट करता है इबादत को, और इबादत का मीनिंग इस्लाम में बहुत ब्रॉड है ना। इबादत क्या है? इवन अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, उनसे हंसकर बात कर रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह से इबादत है, वर्शिप है। बट लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला की रजा। ठीक है, आप लोगों के बहुत अच्छे पॉइंट्स थे कि अल्लाह पाक से करीब होना, अपनी ड्रीम्स को हासिल करना, ठीक है, एंड इवन दुनिया और आखिरत में एक अच्छी जिंदगी गुजारना, ये सब आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। यू ऑल सेड वेरी वैलिड पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 185 में कहा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि फ़उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि वो इंसान जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो असल कामयाब है। अल्लाह ताला की नजर में कौन कामयाब है? वो शख्स जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो असल कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी फ़उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ठीक है, अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, फिर हम दुनिया में क्या करें? देखिए, दुनिया में आप अगर कोई भी प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, बिल्कुल चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉक्टर बनना है या फिर अगर किसी को इंजीनियर बनना है, बेशक आप उस लाइन में जाइए, लेकिन हम दुनिया में इतना ज्यादा मगन नहीं हो जाए कि जो हमारी नमाजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने लगे, हमारा हिजाब कॉम्प्रोमाइज होने लगे, ठीक है, हमारा कुरान कॉम्प्रोमाइज होने लगे। अगर दीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो असल कामयाबी नहीं है। लेकिन दुनिया में रहते हुए जरूरी है कि हम हर फील्ड में आगे बढ़े, बिकॉज आपको पता है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? Who is the father of chemistry? Anyone? Father of chemistry and father of algebra, आपके हिसाब से कौन है? यस, साइंस में पढ़ते आते हैं ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ एल्जेब्रा,
एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। किसी को पता है मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में? ठीक है, लेवोसियर। मेनी पीपल से फादर ऑफ केमिस्ट्री को लेवोसियर, ठीक है। एंड एनी मोर? जाबिर इब्ने रयान, ऐसी कुछ Yes. नाम था आई गेस। yes actually I want this answer. Basically हमें स्कूल वाले यही पढ़ाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर है, राइट, जो कि फ्रेंच केमिस्ट थे, राइट। इन्होंने आई थिंक लॉ ऑफ आई डोंट रिमेम्बर, तो उन्होंने एक लॉ दिया था। खैर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, राइट। लेकिन आपको पता है बेसिकली सारे इन्वेंशंस मुस्लिम्स के थे। इवन फादर ऑफ केमिस्ट्री वाज जाबिर इब्ने हय्यान, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री वाज जाबिर इब्ने हय्यान एंड फादर ऑफ अलजेब्रा वाज मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। ये लेकिन क्या है, मुसलमान क्या हुए, पीछे हो गए एजुकेशन में, ठीक है। और जब वो पीछे हो गए मुसलमान एजुकेशन में, उसके बाद क्या हुआ, जो यूरोप के यूरोपियंस थे उन्होंने क्या करा, मुसलमानों के जो आइडियाज थे उनको लिया, उनको एक्सपेंड किया और अपने नाम से एसोसिएट कर लिया। तो यू वुड थिंक ना कि अगर मुसलमान जो है वो, अगर मुसलमान दुनिया का इल्म हासिल नहीं करें तो क्या हुआ, उनके दीन इंपॉर्टेंट है, दीन और दुनिया दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मुसलमान ऐसे थे साइंटिस्ट कि वो सिर्फ दीन में इन्वॉल्व नहीं थे, वो दुनिया में भी इन्वॉल्व थे, मतलब वो बैलेंस करते थे। तो हमें भी बैलेंस करना है। रियल सक्सेस इज बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया, ठीक है। तो रियल सक्सेस यही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर आप ये सोचें कि दुनिया से क्या फायदा होगा, नहीं, आपको हर फील्ड में आगे बढ़ना है, बिकॉज हर चीज के इन्वेंटर्स मुसलमान थे, हर चीज के इन्वेंटर्स अल्लाह को मानने वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अभी सवाल हमारे माइंड में आता है, बस एक कंडीशन है कि उस दुनिया के उस दुनिया को आपने अपना, आई वुड से, नसबुल एंड नहीं बनाना, यानी कि आखिरी डेस्टिनेशन नहीं बनाना। या फादर ऑफ अलजेब्रा वाज मूसा अल ख्वारिज़मी, ओके अदा, ठीक है। तो बेसिकली दुनिया को आपने बैलेंस करना है दीन के साथ, क्योंकि जब दुनिया इज वेरी इंप्रेसिव यार। आपको पता है दुनिया हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें हैं, आप लोग सोचते होंगे ना कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके पास कितना पैसा होता है, मनी होती है, फेम होता है, मतलब अपना हिजाब भी वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनकी ब्यूटी बड़ी एक्सपोज आउट होती है, राइट। उनकी ब्यूटी से लोग इम्प्रेस होते हैं, उनके मनी से लोग इम्प्रेस होते हैं। लेकिन अब ये नहीं पता ना कि उनका पैसा हलाल का है कि हराम का है, राइट। ऐसी हमें नहीं, हम उनकी ब्यूटी से बड़ा इंप्रेस है कि वो कितनी खूबसूरत है। बट आपको पता है आपका मकसद इससे बड़ा है। उनके लिए ये दुनिया उनका आखिरी डेस्टिनेशन है। उन्हें लगता है कि दुनिया के बाद कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन आप मुसलमान हैं, आप आखिरत पे यकीन रखने वाली प्यारी सी मुस्लिमात हैं। तो आपने इस यकीन के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लेट देम डू व्हाट दे डू, लेट देम से व्हाट दे से। लेकिन आपकी लाइफ में आपका पर्पस अल्लाह ताला को खुश करना है। आप जो दिल चाहे वो बने, चाहे आप लॉयर बने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसमें ये कंट्रोवर्सी आ जाती है सच झूठ की, एंड इवन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है कि मतलब वो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो वो है आईन, जो हमारा कानून है, वो अल्लाह की किताब है, कुरान है। लेकिन उसमें भी आप वो बन के अगर आप हक में फैसले दें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, आप उन सब में जा सकती हैं। रियल सक्सेस इज एवरीथिंग, बीइंग अ प्रोफेशनल मुस्लिमा विद मेंटेनिंग योर दीन, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि सिर्फ दुनिया हमारे लिए सक्सेस है, पर दीन हमारे लिए सक्सेस है, तो ये गलत है। बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया इज द रियल सक्सेस। अब हम पढ़ते हैं सूर्य। अब देखिए दुनिया में सक्सेस हमें पता चल गया कि कैसी सक्सेस दुनिया की, यानी कि हमारे पास अच्छा पर्सनालिटी हो, अच्छा प्रोफेशन हो, हम अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इवन अच्छा अर्न करने पर भी आपने ये नहीं समझना कि ये आपकी मतलब आपके टैलेंट्स है, आपके ऊपर अल्लाह पाक का फजल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह पाक कुरान में क्या कह रहे हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं सूरह मोमिनून में, ठीक है। हम सूरह मोमिनून की स्टार्टिंग की 11 आयत देखते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून,
ठीक है, कामयाब हो गए ईमान वाले। अगर आपने इन 5-6 क्वालिटीज को अपने अंदर यू नो इंडल्ज कर लिया, अपने अंदर फॉलो कर लिया, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब क्या क्या है वो क्वालिटीज, हम आगे पढ़ते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अब हम देखते हैं कि ये ईमान वाले कौन है, आखिर ये ईमान वाले होते कौन है। ठीक है, हम जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके अदा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन द लास्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आयत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो लोग होते हैं जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, हम्बली अपनी नमाज को प्रे करते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या है सक्सेसफुल लोगों की, ईमान वालों की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी नमाजों में खुशू लाते हैं, अपनी नमाजों को हम्बली प्रे करते हैं। ठीक है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। आई थिंक कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच, और वो लोग जो कि जो है लघु बातों से, यानी कि आई वुड से यूजलेस बातों से दूर रहते हैं। एंड आज हमारा यही हाल है, हम इतना ज्यादा इंडल्ज हैं इन सब चीजों में, लघु बातों में, एंड दूसरों की बुराइयां करने में, गीबत करने में, बैक बाइटिंग्स करने में, राइट, या फिर यू नो औरों को इंफीरियर दिखाने में, एंड जो हमारे मतलब की बात ही नहीं है, हम उसमें ज्यादा इंडल्ज हैं आज कंपेयर टू जो हमसे कंसर्न करती है उस बात के मुकाबले, राइट। तो इसलिए अल्लाह पाक ने क्या कहा कि सक्सेसफुल लोग वो भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो दूर रहते हैं किस चीज से, जो दूर रहते हैं लघु बातों से, यू नो इल स्पीच से, गलत बातों से, टाइम वेस्ट करने वाली बातों से। ठीक है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात आपको पता है व्हाट इज, यानी कि अल्लाह की राह में चैरिटी करना, थोड़ा चैरिटी। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, and those who guide their private parts إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed। अब अल्लाह पाक ने कहा कि वो लोग भी होते हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं, except from their wives or those their right hand possess। तो बेसिकली देखिए अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करनी है, एक्सेप्ट किसकी, वाइफ्स और देयर राइट हैंड पोसेस। मतलब कि पहले जमाने में बेसिकली लॉन्डियों का रिवाज हुआ करता था। ठीक है, लोगों के घर में लॉन्डियां हुआ करती थी, अब वो रिवाज नहीं है। ठीक है, अगर वो उनके साथ जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उनकी क्या है, वो ब्लेम नहीं होंगे, यानी उन पे कोई इल्जाम नहीं होगा। लेकिन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, लेकिन जो कोई इसके अलावा कोई ऐसा काम में इन्वॉल्व हो जो कि अडल्ट्री के काम में बेसिकली, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब वो कौन है, वो ट्रांसग्रेसर्स है, वो अल्लाह की लिमिट को क्रॉस करने वाले। और आपको पता है अल्लाह की लिमिट को क्रॉस करने वालों का अंजाम क्या होता है। एक सहाबी थे सुअबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारी कौम में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन आएंगे और वो इस हाल में होंगे कि जो उनकी नेकियां होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो उनकी नेकियां होंगी, गुड डीड्स, वो तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी। लेकिन अल्लाह पाक क्या करेंगे, उनके आमाल को बिल्कुल रेजा रेजा कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टर्न देयर गुड डीड्स इनटू डस्ट। तो सुअबान रज़ी अल्लाह तआला बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे, उनके क्या क्वालिटीज होंगी, हमें तो बताइए कि वो कौन होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग तुम्हारी ही कौम में से होंगे, वो तुम्हारी तरह तहज्जुद पढ़ते होंगे जैसे तुम पढ़ते हो रात को, लेकिन जब वो अपनी तन्हाइयों में, अपनी आइसोलेशन में होते होंगे, तब वो अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करते होंगे, ट्रांसग्रेस करते होंगे। तो अल्लाह पाक देखिए क्या अंजाम है, कितने नेक अमाल कर, लेकिन अगर हमारी जो आइसोलेशन है, जो हमारी खलवत है, वो अगर पाक नहीं, अगर हम मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, अगर हम वो कर रहे हैं अपनी आइसोलेशन में, तो तब क्या होगा, तब बेसिकली हमारी लाइफ में
तब हम क्या हो जाएंगे, ट्रांसग्रेसर्स हो जाएंगे और उनकी सजा बहुत ज्यादा सख्त है, राइट। तो आगे क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, एंड दे who are to their trust and their promises attentive, यानी कि जो अपने वादे और अहद पूरे करते हैं, जो अपनी अमानतें और अपने अहद की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। हमने एक सेशन लिया था ना कमिटमेंट पे, जो कमिटेड होते हैं जिस अपनी बात से, राइट। तो उनके लिए अल्लाह पाक ने क्या कहा, वो भी सक्सेसफुल है। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, एंड दे who carefully maintain their prayers, जो अपनी क्या करते हैं, अपनी नमाजों को मेंटेन रखते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, और ये असल वारिस है, इनहेरिटर्स है, किस चीज के, अल्लज़ीन यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। कितनी प्यारी आयत है ना, अल्लज़ीन यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, who will inherit al firdaus, they will abide therein eternally। तो अल्लाह पाक ने क्या हमारा कुछ चंद क्वालिटीज है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको कामयाब होने दीन और दुनिया दोनों के एतबार से, तो अल्लाह पाक ने बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं सक्सेसफुल के, और उसका बदला क्या है, दुनिया में तो है ही सुकून, सुकून मिलेगा आपको, कामयाबी मिलेगी, और आखिरत में क्या है, यरिसून अल फिरदौस, इनहेरिटर्स ऑफ फिरदौस इंशाअल्लाह, यू बी द वारिसून ऑफ फिरदौस, आप वहां के इनहेरिटर्स होंगे इंशाल्लाह। तो बस चंद पॉइंट्स है जिसके लिए हम, जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है, राइट। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। एनी क्वेश्चंस? हरी अप, बताएं, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। देखिए सक्सेस बस यही है कि अल्लाह ताला की बात मानना, ठीक है, अल्लाह ताला को समझना, अपनी ड्रीम्स को चेस करना, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी के साथ, ऑलवेज बी ग्रेसफुल, ठीक है। कभी भी अपने आप को दुनिया की रंगीनियों में खोकर जाया मत कीजिएगा। आप लोग बहुत प्रेशियस हैं, आप लोग मुस्लिमास हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली वैल्यूएबल, यू आर प्रेशियस, मोर प्रेशियस एंड एक्सपेंसिव देन डायमंड्स बेसिकली। तो इसलिए अपनी कद्र कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए। आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ऑन द टॉप ऑफ दुनिया एज वेल एज द आखिरा। फिर इंशाल्लाह सब जन्नत में साथ में रहेंगे इंशाल्लाह, राइट। फिर हम सब लोग मजे करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा बस हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ा सा बस, एंड देन क्या है, सब कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए, राइट। सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, अदा का एक क्वेश्चन था, if a person do hijab but don't cover her face but stuck between doing hijab but not covering face and feeling like how to do the job in future work, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है हिजाब का हमारी लाइफ में बेसिकली, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम हिजाब करते हैं तो हमें जॉब्स नहीं मिलती, राइट। या फिर जब हम जो है अगर अपने हिजाब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहे तो फिर हमें लोग टॉन्ट करते हैं, राइट। देखिए चेहरे का पर्दा बेसिकली बहुत से लोग हैं जो कि इसको नहीं मानते, बहुत से उलमा के नजदीक चेहरे का पर्दा नहीं आया है, लेकिन आई वुड से कि चेहरे का पर्दा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसलिए देखिए ना कि आपकी सारी ब्यूटी तो चेहरे पे छुपी होती है, फेस पे होती है। व्हाई डोंट यू कवर इट? इसको आप जब कवर करेंगे तो अल्लाह पाक की रजा के लिए कीजिए, अल्लाह पाक इसका आपको रिवॉर्ड देगा। तो और अगर कहीं पर आपका हिजाब कॉम्प्रोमाइज हो रहा तो प्लीज दुनिया को कॉम्प्रोमाइज होने दीजिए, बट हिजाब को नहीं, बिकॉज योर हिजाब मैटर्स द मोस्ट। और अगर आपको आप यकीन रखें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देंगे। आज मैंने अपना हिजाब की वजह से अपनी जॉब कुर्बान की, अल्लाह पाक मुझे और बेहतरीन जॉब देंगे। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी स्टोरीज है। एक सिस्टर है, तो बेसिकली उन्होंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया था अपनी जॉब के लिए, बट उनको हिजाब की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। एंड फाइनली जब उनको जॉब मिली ना, तो शी गॉट सच अ वंडरफुल जॉब फ्रॉम अमेरिका एंड दैट टू फ्रॉम होम, ठीक है, एंड विद हिजाब। तो देखिए आप अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। जस्ट यू नीड तवक्कुल, यू नीड ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस कम अप माय डियरीज? और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे आप? बिकॉज दिस अ डिस्कसिव सेशन,
आपके जो भी पॉइंट्स हो, दिस वाज माय थॉट्स, माय ओपिनियंस, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय यंगस्टर्स ओपिनियंस. जाइना, लाइबा, मनाल, फातिमा, जीला, आप जो भी बताना चाहे मोस्ट वेलकम. ये हमारा डिस्कसिव सेशन है ना, so you all are welcome to share your views. We have 5 minutes because उसके बाद ही मीटिंग एंड हो जाएगी. So आप लोग इन 5 मिनट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं. If you have any questions, फिर अपने पॉइंट्स शेयर कीजिए. अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात आपको लगती है उसमें ऐड ऑन करना है, कोई भी बात. Yes. नहीं, इफ यू हैव नो डाउट्स, अगर कोई पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज ये आपका डिस्कशन रूम है. ठीक है, इट्स योर डिस्कशन रूम. यहाँ पर हम सब सीखने आए. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह. यस माय डियरीज, हरी अप, कम अप विद योर पॉइंट्स. ओके, आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं है, कोई पॉइंट्स शेयर नहीं करने. ओके, so let's end the class inshallah. I hope this class would have been beneficial for you. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.